Jai Hind student, welcome to English class. So students, as you all know, we were discussing the grammar topic, that is active and passive voice. So in the first lecture we have discussed about what is voice, what is active voice and what is passive voice. And we have also discussed few examples. With the help of these examples, we have discussed active and passive voice. Now in this lecture we will discuss about the rules, how to change the active into passive voice, what rules you have to use while changing the sentences from active into passive voice. So there are two basic rules for converting active into passive voice. The first is that the subject and the object place, that is interchanged in the passive voice. Suppose in case of active sentence, the place of subject, it is taken by the object, and the place of object is taken by the subject when you convert active sentence into passive sentence. For example, I say he reads a book. Okay, so he is the subject and book is the object. When you are going to change it into passive voice, then what will happen? The book object will become the subject in passive voice, and he who which is subject in the active voice will become object in the passive voice, and it will change accordingly. He will change into him, or she will change into her, they will change into them. So these are the few rules that you need to remember. So this is the first thing. And the second thing is that only third form of the verb or past participle will be used as the main verb in passive voice. Passive voice में हम सिर्फ third form use करते हैं verb का. When you change the sentence from active into passive voice, then you only have to use the third form of the verb. Now one more thing is there कि you have to, while changing the sentence from active into passive voice, you have to use the preposition by. Okay, for example, he reads a book. A book is read by him. So by preposition is used. These are the rules which you need to remember while changing the sentence from active into passive voice. Now let's see the while changing the sentences from active into passive voice, you need to change the you need to see the tenses, how the tenses are changed, that we are going to discuss. नाउ एज यू ऑल नो, सिंपल प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करें तो इज एम आर यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में. ओके, एंड एस एंड ई एस इज ऑल्सो यूज डिपेंडिंग ऑन द सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन टेंसेज. टेंसेज के रूल सबको पता है और सबको मेमोराइज रखने हैं, याद रखने हैं, बिकॉज हेयर यू आर गोइंग टू यूज़ द टेंसेज ओनली. फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस कि इन विच टेंस दैट सेंटेंस इज. सबसे पहला स्टेप होता है, अगर आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करना है तो जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, उसको आपको देखना पड़ेगा वो किस टेंस में है. सो दैट मीन्स कि इन ग्रामर एवरीथिंग इज कोरिलेटेड. हर जो कॉन्सेप्ट होता है, हर टॉपिक होता है ग्रामर में बेटा, वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है. तो यू कांट स्किप एनीथिंग कि नहीं मैंने टेंस पढ़ लिया अब ख़त्म, इसका कोई यूज़ नहीं है. मैंने प्रपोजिशन पढ़ लिया, मैंने मोडाल्स पढ़ लिए, इट्स ओवर. नो, you need to apply all these concept in your sentence making. sentence making जो है उसमें सब कुछ होता है, प्रपोजिशंस भी आएंगे, मॉडल्स भी आएंगे, वर्ब्स भी आएंगे और टेंस भी आएंगे. तो आपको सब कुछ याद रखना है. तो टेंसेज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो सपोज अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें, सपोज द सेंटेंस इज ही राइट्स अ लेटर. So the same, a letter is the object. Now in passive voice it will become the subject. A letter is written by him. He will change into him. So this is how you change the active voice, simple present tense, into passive voice. So the things are same. You have to use is, am, are and the third form of the verb while changing the sentence in simple your present simple present tense. Okay, if the sentence is negative, so the verb, that is your is, am, are, will be followed by not. A letter is not written by him. Suppose the sentence is a interrogative sentence. Does he write a letter? So what will happen? Does will change into is depending on the
सब्जेक्ट कि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर में है कि प्लूरल में है। ओके, उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देंगे। इज़ हो जाएगा, इज़ अ लेटर रिटन बाय हिम, बिकॉज लेटर इज़ ऑल्सो अ सिंगुलर, सो सिंगुलर के साथ इज़ जाएगा। अगर प्लूरल होता तो आर जाता। ओके, दे सेल बुक्स, बुक्स आर सोल्ड बाय देम। शी हेल्प्स मी, I am helped by her. So these are the few rules of simple present tense. Now present progressive tense, that is present continuous tense. अगर sentence active sentence जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है, तब आपको क्या करना है, सेम इज़ एम आर तो यूज़ हो गई, उसके साथ बीइंग यूज़ होगा, BEING। ठीक है, इज़ बीइंग और आर बीइंग, ओके, ये यूज़ हो जाएगा, और एम बीइंग। रेस्ट ऑफ द थिंग्स इज सेम। अगर क्वेश्चन सेंटेंस है, इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, देन व्हाट विल हैपन, इज अ सॉन्ग बीइंग sung by her. So what will happen, the sing third form is sung. So you need to remember the forms of the verb also here. They are eating apples, apples are being eaten by them. So here apples is plural, so apple के ही according आप जो है helping verb लोगे। ठीक है, हम हमेशा जो helping verb use करते हैं that is according to the subject। तो जब हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, दैट यू नीड टू रिमेंबर। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है, एज यू ऑल नो, रूल के अकॉर्डिंग हैज़ और हैव होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस तो हैज़ हैव तो यूज़ होगा, साथ में BEEN बीन एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगा। ओके, now coming to the past tense, simple past tense as you all know was या were यूज़ होता है। ओके, सो सिंपल पास्ट टेंस सेंटेंस की बात करें तो लाइक ही बॉट अ कार। ओके, इसमें सेकेंड फॉर्म वर्ब की यूज़ होती है इस सेंटेंस में, जो एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं, और जब आप इनको पैसिव में चेंज करोगे तो आपको वॉज और वर यूज़ करना होगा डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज। क्वेश्चन सेंटेंस है तो डिड से स्टार्ट होगा एक्टिव वॉइस में, डिड ही बाय अ कार, तो पैसिव वॉइस में वॉज अ कार बॉट बाय हिम हो जाएगा। ओके, सो इन दिस वे वी चेंज द सेंटेंस, और ये आपको मेमोराइज भी करना है। सेकेंडली ये प्रैक्टिस से भी आ जाता है, बट यू नीड टू रिमेंबर द रूल्स द सेम। नाउ पास्ट कॉन्टिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस की बात करें, सेम रूल्स होंगे, वॉज और वर यूज़ होगा, साथ में BEING बीइंग यूज़ होगा, लाइक इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में था। ओके, नाउ परफेक्ट टेंस की बात करें, पास्ट परफेक्ट, एज यू ऑल नो, जो पास्ट परफेक्ट सेंटेंसेज होते हैं उसमें हैड यूज़ होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। व्हेन यू आर गोइंग टू चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस तो हैड ही यूज़ होगा, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, बट साथ में BEEN बीन भी यूज़ होगा, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नाउ कमिंग टू द फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करें तो शी विल राइट अ लेटर और और आई शैल राइट अ लेटर, विल और शैल यूज़ होता है। अब जब हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो विल शैल रहेगा, साथ में BE लग जाता है, शैल बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, लाइक अ पोएम शैल बी रिटन और पोएम विल बी रिटन बाय हर। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट होता है वो अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, ही शी दे। ठीक है, वी है तो अस हो जाएगा। सो ये भी आपको याद रखना है, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स कैरी मार्क्स। ओके, नाउ यू है तो यू ही रहेगा, यू विल रिसीव द लेटर विल बी रिसीव्ड बाय यू। ओके, दे विल चेंज इन टू देम, दैट यू कैन सी। नाउ नो चेंज फॉर कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट टेंस की बात करें तो आपको पता है परफेक्ट टेंस में विल प्लस हैव यूज़ होता है, विल हैव और शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो विल हैव शैल हैव रहेगा, साथ में BEEN बीन यूज़ होगा, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ओके, नाउ these are the tenses, these are the tense you can say sentences जबकि पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता है, नो चेंज इन द पैसिव वॉइस। किस किस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, एंड सेंटेंस हैविंग इंट्रांजिटिव वर्ब्स। सो ये भी आपको
याद रखना है. This is also a part of a rule. Okay, so this is all about the rules of active and passive voice. So hope now you all have understood. Thank you, students.